Good morning, friends. Welcome to the Prelims Booster session. So let's start this session with the first topic, which is World Environment Day. तो 5 जून को जो है आपको पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो इस साल का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया है उसको जॉइंटली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने उसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था। जो इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी सेलिब्रेशन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया करना चाहता है उसके ऊपर रिपोर्ट जो है उसको एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। और एक E100 पायलट प्रोजेक्ट भी जो है उसको पुणे में लॉन्च किया है, जिसका बेसिकली मोटिव है कि प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना एथेनॉल की अक्रॉस द कंट्री। तो आपको पता होगा कि हमने पहले टारगेट रखा हुआ था कि 2030 तक हम जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल में उसको हम 20% तक कर देंगे। ठीक है, तो उस टारगेट को रिवाइज करके 2030 की बजाय अब 5 साल पहले ही हम अचीव करना चाहते हैं 2025 तक। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इस स्कीम के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, इस साल का इंडिया का थीम याद रखो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो ग्लोबल लेवल पर मनाया जाता है उसका थीम अलग है, लेकिन जो इंडिया में इस बार मनाया गया उसका थीम है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में देखते हैं। 5 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, जब सबसे पहली बार मनाया गया था 1974 में, तो उस टाइम का थीम था ओनली वन अर्थ। 1972 की यूएन जनरल असेंबली जो मीटिंग हुई थी उसमें डेजिग्नेट किया गया था कि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई है उसको हम जो है आगे से हम उसको एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो 1974 से इसको ऐसे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। बेसिकली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता था कि अवेयरनेस रेज की जा सके एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। इस साल का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और इस बार का जो है होस्ट है, इंटरनेशनल होस्ट जो था वो पाकिस्तान था। ठीक है, now let us see this topic in English. World Environment Day. So Prime Minister Narendra Modi ji has addressed the World Environment Day celebrations in India. And now this year's World Environment Day in India is jointly organized by Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Environment. Okay, so he has also released a report of expert committee on ethanol blending in India. Okay, so you may be knowing that earlier we had a target of blending ethanol in petrol, 20% ethanol blending in petrol by the year 2030, but now the government has revised that target and government wants to blend 20% ethanol in petrol by the year 2025. So we have preponed this target to 5 years. Okay, so E100 pilot project has also been launched in Pune, so that this project will basically aim at production and distribution of ethanol across the country. So this year's theme for India, so you may be knowing that it is celebrated at the global level also, at the national level also. So the national level theme was promotion of biofuels for a better environment. Now let us see something about World Environment Day. So it is celebrated on 5th June every year. We all know that. So there was a conference, United Nations Conference on Human Environment. It was conducted in 1972, and at that year, United Nations General Assembly designated that day of that conference as World Environment Day. And since 1974, it is being celebrated as the World Environment Day, and the first theme was only one earth. So it is basically celebrated so that we can raise awareness about environment and climate change related issues, global warming and all that. This year's theme was ecosystem restoration. The global level environment day celebration theme was ecosystem restoration, and this year Pakistan was the host country for this environment day. Okay, so next let's see the next topic, which is G7 corporate tax deal. तो जो G7 countries हैं, जो हमारी जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड ईयू, ये सब जो हैं, जो इन्होंने जो है एक तरह से कॉरपोरेट टैक्स पे एक डील कर लिया साइन, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी क्या होता है कि जैसे यूएस में समझ लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूएस में जैसे कॉरपोरेट टैक्स पहले ट्रंप के जो प्रेसिडेंट थे उनसे पहले था 35%। फिर जो कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूके में अगर आप एग्जांपल ले लो 25%, फिर जर्मनी में 20%। तो उसमें क्या होता था कि जो कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं यूएस में, वो क्या करती थी, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती थी ऐसी कंट्रीज में जहां पर टैक्स कम हो, फिर वो वहां से टैक्स कटवा लेती थी, जैसे 5% या 10%। जैसे आयरलैंड हो गया, वहां पर तो बहुत ही कम टैक्स है, तो वहां से टैक्स
टैक्स कटवा के जो है वो यूएस को बोलती थी कि हमारा आपके यहाँ तो कोई प्रॉफिट ही नहीं, हमारा सारा प्रॉफिट आयरलैंड में हुआ है, जस्ट बिकॉज कि वो वहां पर यूएस में 35% रेट पर टैक्स नहीं देना चाहते। तो उससे क्या होता है कि यूएस को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होता था। तो ये यूएस के जो ट्रेजर सेक्रेटरी वहां के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो जेनेट येलन वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेसिकली, उन्होंने बोला कि अगर हम सारे जो है मिनिमम टैक्स रेट जो है अपना रख लें, तो जो ये कंपनीज हैं जो हमारे को अभी आपस में कंपीट करने पे मजबूर कर रही हैं, वो उनके जो ये लीवरेज है उनके पास कि वो टैक्स रेट जहां पर कम होता है वहां पर चली जाती हैं, वो लीवरेज उनकी खत्म हो जाएगी और ये टैक्स की जो एक तरह से हेरा फेरी कम हो जाएगी। तो ये जो है जो डील थी ये साइन हो गई है G7 कंट्रीज में कि हाँ एक मिनिमम टैक्स रेट तो होना चाहिए सारी कंट्रीज में, उसी के बेसिस पर ही हम जो है ये टैक्स की जो चोरी है, जो टैक्स का जो एक तरह से हेरा फेरी है उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है डिसाइड किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि टैक्स नहीं पे करती थी उस कंट्री में जहां पर वो ऑपरेट कर रही हैं, अपने टैक्स को शिफ्ट कर देती थी अपनी इनकम को किसी और कंट्री में जहां पर कम टैक्स है, उनको हम फोर्स करेंगे अब कि वो अपनी उसी कंट्री में ही पे करें टैक्स। कैसे फोर्स करेंगे कि हम हर जगह ही मिनिमम टैक्स रख देंगे कि अब मिनिमम आपको हर जगह 15% टैक्स तो देना पड़ेगा, अब आप घुमा लो पैसा। ठीक है, अगर यूएस में भी 15% टैक्स है, यूके में भी 15% टैक्स है, जर्मनी में भी 15% टैक्स है, तो किसी भी कंपनी को कोई फायदा ही नहीं है कि उसको दूसरी कंट्री में जो है वो शिफ्ट करने का। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये कंपटीशन जो आपस कंट्रीज में आपस में चल रहा था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, जो कि अननेसेसरी कंपटीशन था जिससे उनका टैक्स लॉस होता था। एक उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि जो बहुत लार्ज और जो मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं उनसे 10% जो है वो मार्जिन से ज़्यादा, मतलब कि समझ लो अगर 100 रुपए वो कमा रही हैं तो 10% के ऊपर जितना भी है उसका एटलीस्ट 20% वो जो है वो टैक्स लगा सकते हैं। मतलब कि 10% का मार्जिन कितना हुआ, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं 100। ठीक है, अब उसका मिनिमम एटलीस्ट 20% जो उससे ऊपर का जो अमाउंट है उसका एटलीस्ट 20% जो है उतना टैक्स वो और ले सकती हैं। ठीक है, तो मतलब ये मोटे मोटे तौर पर वही 15% के आसपास ही बनता है। ठीक है, तो 15% टैक्स मिनिमम कंट्रीज जो है वो इतना रखेंगी। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया है। तो बाकी कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे उन्होंने ये G7 कंट्रीज ने बाकी कंट्रीज को भी कहा है कि आप भी अपना मिनिमम टैक्स जो है वो 15% कर दो, वरना हम आपस में ही कंपीट करते रहेंगे। अब ये मिनिमम टैक्स रेट क्यों रखा है? अब ये असल में तो जो यूएस का प्रपोजल था उन्होंने कहा था कि 21% होना चाहिए मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो मैं आपको कह रहा हूँ उन्होंने उनका ये प्रपोजल था, लेकिन अब जो है 15% पर डिसाइड हुआ है। सारी कंट्रीज ने 21% को सोचा कि वो बहुत हाई टैक्स है, तो अब उसको थोड़ा कम करके उन्होंने 15% मिनिमम जो है, अब ये मिनिमम है, इसको इससे ऊपर जितना मर्जी हो सकता है, इससे कम नहीं कोई कंट्री रखेगी। ठीक है, अब जो है इस प्रपोजल को आईएमएफ ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट ही किया है कि हाँ ठीक है ये, क्योंकि इससे क्या होता है कि अदरवाइज जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो आपने देखा होगा ना ये एप्पल फेसबुक वगैरह, ये क्या करते थे कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट ज़्यादा है, तो वो यहाँ से टैक्स बचाने के लिए क्या करते थे कि मॉरिशियस, हांगकॉन्ग, सिंगापुर जहाँ पर कम टैक्स है वहाँ पर अपना सारा प्रॉफिट दिखा देते थे और वहाँ पर जो है वो वही 1% या लेस देन 1% जो टैक्स, या फिर कई जगहों पे तो 0% टैक्स है, वो वहाँ पर टैक्स पे कर देते थे और इंडिया में टैक्स नहीं पे करना पड़ता था उनको। अब उसको उससे बचने के लिए जो है ये जो है वो जो है डिसीजन लिया गया है। अब चाइना ने इसको थोड़ा सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसको ये भी कंसर्न है कि हांगकॉन्ग जहां पर जो है कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं है या फिर बहुत ही कम है, बहुत मिनिमम लेवल पर है, वो उनकी तो इकोनॉमी ही इसी चीज पर चल रही है कि वो लो टैक्स इकोनॉमी है। ठीक है, वो एक तरह से टैक्स हेवन है, तो उनको नुकसान होगा। तो और हांगकांग में जिस तरह की जो है वो एक तरह से टर्बुलेंस चलती है, इंस्टेबिलिटी चलती है, जो है चाइना वो उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और इससे हांगकांग को एक इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, इसीलिए जो है चाइना को थोड़ा सा कंसर्न रहेगा इसके लिए। अब टारगेट्स क्या हैं? टारगेट वही कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एप्पल, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, ये अपनी सब्सिडरीज खोल देती हैं। जैसे कि समझ लो जैसे वोडाफोन ने भी किया था ना यहाँ पे, कि वोडाफोन क्या करता था, या फिर आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, हम किसी पर्टिकुलर कंपनी को नहीं बदनाम करेंगे, किसी एक ए नाम की कंपनी है, वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, हज़ारों करोड़ों रुपए कमा रही है, वो क्या करते थे, जानबूझ के एक छोटी सी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी सिंगापुर में खोल देते थे। ठीक है, फिर वो अपना जो यहाँ पे जितना भी उन्होंने लाखों करोड़ों कमाया वो सारा उसमें ट्रांसफ़र कर देते थे और फिर सिंगापुर में जो है जितना भी मिनिमम सा टैक्स होता है या फिर 0% टैक्स है, उतना जो भी कटवा के इंडिया को बोलते थे कि हमारी खुद की तो कोई कमाई हुई नहीं है, हमारी जिसकी भी कमाई हुई है वो सिंगापुर वाली कंपनी की कमाई हुई है, तो यहाँ पर वो टैक्स पे ही नहीं करते थे, यहाँ पे बहुत
कम इनकम दिखा के अपना मिनिमम जो टैक्स पेमेंट करते थे, ठीक है। असल में उन्होंने कमाया सारा यहाँ से है पैसा, लेकिन उन्होंने शिफ्ट अपनी दूसरी कंपनी में कर दिया। जो ये राउंड ट्रिपिंग हो रही है अपने प्रॉफिट की, इसको रोकने के लिए इसमें जो है ये टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। जब अब अगर सिंगापुर में भी 15% टैक्स होगा, इंडिया में भी 15% टैक्स होगा, तो किसी कंपनी को फायदा ही नहीं है सिंगापुर में अपना ऐसी कंपनी खोलने का, जिसको हम शेल कंपनी कहेंगे, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए जो है इन कंपनीज को टारगेट करने के लिए ही ये एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके प्रॉब्लम क्या है? अब इसके प्लान में, अब देखने में तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि इक्वालिटी आ जाएगी, लेकिन अब आप देख रहे हो ना कि इंडिया अगर 15% टैक्स ले रहा है, सिंगापुर भी 15% टैक्स ले रहा है, तो इसमें नुकसान किसको हो रहा है? सिंगापुर को। क्योंकि पहले तो उस पर जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ जाती थी, जितना प्रॉफिट शिफ्ट हुआ, कितना पैसा आ जाता था सिंगापुर के पास, हांगकांग के पास, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, ठीक है, कंट्रीज के पास बेसिकली। तो उनको नुकसान है, एक तो उनको नुकसान है। दूसरा, क्या अब हमारे लिए दूसरी कंट्रीज डिसाइड करेंगे कि हम कितना टैक्स पे, हम अपनी कंट्री हम कितना टैक्स रेट रखें, कॉर्पोरेट टैक्स? ये तो हमारी हमारी कंट्री का सोवरेन डिसीजन है। हम जितना मर्जी टैक्स रेट रखें, हम चाहे 10% रखें, चाहे हम कितना भी रखें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन ले लो, जब डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं, यूएस वगैरह को तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी इंडिया जैसी कंट्री को जब इकोनॉमी में हमारी एक तरह से स्लो डाउन चल रहा है, तो इंडिया जो है वो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको इंडिया में लाने के लिए जानबूझकर कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देगा, ताकि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आए। लेकिन अगर ये डील साइन हो गई, हमको भी मिनिमम 15% टैक्स रखना पड़ा रेट, तो जो बाहर की कंपनीज हैं उनको इंडिया में आने का कोई जो है इंसेंटिव ही नहीं होगा, ठीक है। तो उससे हमारे को नुकसान है, डेवलपिंग कंट्रीज को, जो इस टाइम पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश करने के लिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसके बेनिफिट्स देने की प्लान कर रही थी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। ग्लोबल G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील। सो दीज G7 grouping has decided, G7 countries, basically the developed countries, the western countries, basically they have decided that they will have a minimum corporate tax, so that this round tripping of money amongst these countries will stop. So what is happening at this moment, that US has, I'm just giving you an example, these are not the actual rates of tax. Okay, so let's assume that US is charging 35% of income tax, or I'm sorry, corporate tax to their entities, and UK is charging 15%. Okay, so what would happen, that a company which is actually earning from US, it is operating in US, and it is earning money in US from the people of America, but what will they do? What this company will do, they will open an office in UK, because it has a low corporate tax. Then they will shift that entire profit to that UK based company, and then they will pay their income tax in UK. Okay, and what will they do? They will show you to the US that we have very little profit at this company, which in reality the entire profit that the UK company, that their UK company is having, it is entirely earned in US. Okay, so what is happening at this moment? These companies, let's take the example of Amazon. Amazon is shifting to those locations which are offering them corporate tax benefits. So at this moment, these advanced economies, or even our developing economies, they are fighting against each other. US is saying, come to us, invest in our country, we are offering 25% tax. India says, come to us, we are offering only 20% in corporate tax. Then Dubai is saying, come to us, we are offering 0% corporate tax. So we are currently competing with each other. So that's why the US Treasury Secretary, which is also the finance minister of basically US, so she has proposed that we should have a minimum tax rate, so that these companies, they do not have any leverage against our governments. Okay, that's why this decision has been taken, that we will have a minimum tax rate of 15% in our economies or our countries, so that these companies will not find any incentive to move or shift their income to other countries. Okay, so original proposal was to have a tax rate of 21%. This US Treasury Secretary said that we should have a income tax rate of
I'm sorry, corporate tax rate of 21%. But other countries thought that this rate was too high, and they finally agreed for the 15% floor rate. At this moment, most of the countries will be supporting this, but in few time maybe China will raise some objections, because they have a situation at Hong Kong, which is operating as a tax haven, and it is an economic powerhouse. It is the seventh largest tax haven in the world and largest in Asia, and its economy works on the basis of it being a tax haven. So China would not want any turbulence in Hong Kong, any economic turbulence in Hong Kong, which could have any impact on its political situation. So China may oppose it, this 15% minimum tax rate, and we'll have to see what how China will behave. But these experts are saying that China may not be very happy with the with its impact on Hong Kong. Okay, so who are the targets? Why this G7 deal is happening? The targets are these big companies, these Apple, Alphabet. Alphabet is the parent company of Google. So this Alphabet, Facebook, Nike, and Starbucks, these corporations, these big corporations, they rely on complex web of subsidiaries. They open subsidiaries in these countries such as Ireland, Caribbean nations, Panama, Singapore, Hong Kong, Bahamas. All these areas where there's almost nil tax. So what they do is they shift their entire income to this small shell company or this subsidiary company in Bahamas or Panama, and and they show to their original country, like in US or even India, that they are not having any income at this country, and they have the entire income at this Bahama based company. So that's why they shift a significant part of their income to these low tax jurisdictions, so as to save payment of taxes in the original country. Okay, so US Treasury, the US government is losing almost $50 billion of taxes, avoidance of taxes, this tax avoidance, due to this round tripping, and India is losing almost $10 billion due to this round tripping of income. Okay, so but we may be seeing this as a very good innovation or a very good agreement, but there are some issues with this plan also. So the first issue is, this will impinge on the right of our own country, of our sovereign country, to decide on how much tax we should impose on our corporate uh, companies, or basically corporate world. Okay, so this tax policy is basically the sovereign right of a country. How can we give away this right to an international agreement? Okay, so at this moment India may decide that we may have 10% corporate tax rate or we may have a 30% corporate tax rate, but after this agreement we will have to impose a minimum of 15% tax rate. So it basically takes away our sovereign right to decide on our taxation policy. Okay, so currently we are also suffering from COVID induced economic situation, and we may be planning to offer tax benefits to these overseas companies, so that they start investing in India. Okay, so if we sign this proposal, then we will have a minimum floor rate, and these foreign companies, these Amazon or these Facebook, Apple, they will have no real incentive to invest in India if we sign this taxation agreement. Okay, so these are the actual problems with this plan. So that's why these developing countries may not accept this proposal. So let's move on to the next topic, which is Kerala's smart kitchen project. तो जो केरला गवर्नमेंट है वो एक स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें 5 करोड़ का उन्होंने बजट रखा है, और जो हाउस होल्ड जो किचन्स हैं उसको मॉडर्नाइज करने का इनका ये प्लान है इसमें. ठीक है, अब इसमें सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे विमेन को, ताकि वो ऐसे गैजेट्स को खरीद सकें, ऐसे इक्विपमेंट को खरीद सकें, जिससे कि उनकी जो है किचन जो है वो मॉडर्नाइज हो सके, और जो उनके ऊपर जो भार आया हुआ है, जो उनके ऊपर जो जैसे समझ लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, अगर वो किसी के पास नहीं है तो उसको कितनी मुश्किल होगी किचन में काम करने के लिए, उसके
बहुत सी चीज़ें जो है वो रेफ्रिजरेटर के बिना नहीं चल सकती, ठीक है। तो उनको सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे उसके लिए, ताकि वो ऐसी चीज़ों को खरीद सकें। अब इससे क्या होगा कि जो है जो हाउस होल्ड जो कोर्स हैं उनके ऊपर, जो मतलब जो हमारी विमेन हैं जो हाउस होल्ड कोर्स करती हैं, उनके ऊपर ये भार कम हो जाएगा। जब उनका ये भार कम हो जाएगा तो उनको जो है वर्क प्लेस पे भी जो है उनको उनकी जो है उनको उनका फोकस रह सकेगा, ठीक है। तो एक तरह से हम उनको जो है लिबरेट करना चाहते हैं कि वो घर के जो है कामों से वो थोड़ा सा उनके लिए ईजी हो जाए, वो इतने डिफिकल्ट ना रहें। अब इसमें क्या प्लान किया गया है कि उनको सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे, जो कि जो उसको जिसकी इंस्टॉलमेंट्स में वो जो जो है वो वापस कर सकते हैं उस लोन्स को, ठीक है। जो इसके इंटरेस्ट की कॉस्ट है जो लोन्स की, या फिर उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी जो लोन लेने की, वो इक्वली शेयर की जाएगी बेनिफिशियरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अब आइडिया क्या है इस प्रोजेक्ट के बीच में कि अगर आपको विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है लेबर में, तो जो उनके घर के ऊपर जो जो उनके घर के कामों में जो उनको जो बर्डन है उसको किस तरह से हम ईजी कर सकते हैं, किस तरह से डिफिकल्टी उसकी कम कर सकते हैं। तो अगर हम उनके किचन को मॉडर्नाइज कर दें तो थोड़ा उनका जो बर्डन है वो कम हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मोडालिटीज में देखा गया कि कदमश्री एक योजना है केरला की, जिसमें कि विमेन एम्पावरमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन एक स्कीम है। अब उनके जो मेंबर्स हैं उनको थोड़े से जो है ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनसे कोई कोलैटरल भी नहीं लिया जाएगा, एक तरह से कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी जब उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, केरला स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट। So Kerala government has decided that they will introduce a smart kitchen project under which they will modernize their kitchens so that the difficulties faced by the women in doing their household chores, it can be eased. Okay, so an amount of 5 crore has been earmarked for this scheme for the initial phase, and this KFSE, this Kerala State Finance Enterprise, this will implement this scheme. Okay, and this KSFE will basically give soft loans to women so that they can procure household gadgets or equipment, and they can ease their burden in the kitchen. Okay, so the interest or the of the loan or the cost of the loan will be equally shared between the beneficiary, local self government body and the state government. Okay, the idea behind this project is that if we want to increase participation of women in labor, we have to lessen the burden of the women in their while they for their household chores. Okay, women participation in labor has to be increased by easing their burden in their homes, and the modalities for this scheme are that the members of this Kadam Shri Yojana, they will be given preference and there will be no collateral for them if they avail these the benefits under this scheme. Now let us see the next topic, which is प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव जो है वो हरियाणा की गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि जो 75 साल से बड़े जितने भी पेड़ हैं उनको एक फॉर्म ऑफ पेंशन दी जाएगी। अब आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि पेड़ों को कैसे पेंशन देंगे। पेंशन किस तरह से होगी कि एक तरह से 2500 रुपये जो हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज को दिए जाएंगे, ताकि हर साल के 2500 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो उस पेड़ की जो है वो देख रेख कर सकें, उसकी मेंटेनेंस कर सकें, ठीक है। ऑक्सी फॉरेस्ट जो है बनाए जाएंगे। ऑक्सी फॉरेस्ट मतलब ऑक्सीजन बेस्ड फॉरेस्ट। ऑक्सी फॉरेस्ट का मतलब यही हुआ कि प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे 5 एकड़ से 100 एकड़ की ज़मीन के बीच में, और जो है ये 2500 रुपये की पेंशन दी जा रही है। और ये ऑक्सी फॉरेस्ट क्या है बेसिकली कि ऐसे पीसीज ऑफ लैंड जो है आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं 5 एकड़ से 100 एकड़ के बीच वाले, जिसपे 3 करोड़ प्लांट्स उगाने की जो है वो एक योजना है, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, प्राण वायु देवता पेंशन scheme. So this is a very unique initiative of Haryana government, under which the government has decided that they will give pension to all those trees who are 75 years of age and above. So you may be wondering how the government will be giving pension to these trees. The idea is basically to give a maintenance amount to urban local bodies, 2500 rupees per year amount to these urban local bodies, so that they can manage these trees who are basically 75 years old and above. Okay, so there is also a plan, this oxygen forest, under which the lands will be identified between the areas of 5 acre to 100 acre, where
3 crore trees will be planted. Okay, so this area will be almost 10% of the 8 lakh hectares of land across Haryana. So the entire state of Haryana, in the entire state of Haryana, almost 10% area will be covered with these forests. Okay, सो नाउ लेट अस सी दिस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉर्बेवैक्स. तो इंडिया ने एक और न्यू वैक्सीन जो है उसको जो है मंजूरी दे दी है, और इवन इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है 30 करोड़ वैक्सीन का. ये बायोलॉजिकल ई एक कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, वो इसको बना रही है. तो ये वर्क कैसे करती है, बहुत ही यूनिक ये वैक्सीन है. ये बेसिकली क्या करती है, आपने देखा होगा ना कि जो वायरस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होता है, मतलब जो उसके वो तीखे तीखे से बने होते हैं, उसी के को यूज़ करके बनाई गई है. तो मतलब आपकी बॉडी में वायरस नहीं जाएगा, सिर्फ वो स्पाइक प्रोटीन है जो वो जाएगा. उसी के बेसिस पर आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा. और ये जो फॉर्मूला है जो सिर्फ उसके स्पाइक प्रोटीन को यूज़ करके वैक्सीन को बनाने का, ये पहले हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए भी यूज़ किया जा चुका है. लेकिन कॉर्बेवैक्स जो है वो पहली बार किसी कोविड वैक्सीन में इस स्पाइक प्रोटीन के फॉर्मूले को यूज कर रही है. ठीक है, तो नोवावैक्स, जिसको हमारे इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, तो नोवावैक्स भी ने भी यही फॉर्मूला यूज किया है, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है वो भी. लेकिन अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि वो एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो उसको अभी नहीं मिला है. ठीक है, EUA जो उसको जो मिलता है वो नहीं मिला है अभी तक. ठीक है, अब ये कॉर्बेवैक्स बनाई कैसे गई है, तो US बेस्ड जो है वो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया था. इस प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन को, इसको स्पाइक प्रोटीन को एक तरह से उन्होंने सीक्वेंस करके निकाला, और उसको जैसे कि आपको देखा है ना आपने बियर बनती है, उसी प्रोसेस को यूज़ किया उन्होंने. ये आप पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. उसी प्रोसेस को यूज़ करके क्लोनिंग करी उसकी स्पाइक प्रोटीन की, और उसको इंजीनियर करके इस वैक्सीन को बनाया है. और इसकी प्रोडक्शन बेसिकली जो है वो बायोलॉजिकल ई कर रही है, लेकिन रिसर्च जो है वो बेलर कॉलेज ने इसको किया है. ठीक है, तो प्रोड्यूस तो ये इंडिजिनसली है, लेकिन जो रिसर्च है वो इंडिजिनस रिसर्च नहीं है. ठीक है, तो अगस्त 2020 में तो ये बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है उन्होंने जो है ये टेक्नोलॉजी को जो ट्रांसफ़र कर दिया था बायोलॉजिकल ई को. उसके बाद से जो है ये बायोलॉजिकल ई जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर चुका है. इसकी ट्रायल्स चल रहे हैं इंडिया में, फेज़ 3 ट्रायल्स जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है, और गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो कि ख़त्म हो जाएंगे फेज़ 3 ट्रायल्स जुलाई में, और आने वाले टाइम में जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. अब क्योंकि सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के बेसिस पर ये जो है वैक्सीन बन रही है, तो ये बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ही लो कॉस्ट में इसको बनाया जा सकता है, और बहुत जल्दी इसको बनाया जा सकता है, बहुत जल्दी इसकी प्रोडक्शन को रैंप अप किया जा सकता है. और ये अमंग द चीपेस्ट अवेलेबल वैक्सीन इन द कंट्री होगी, क्योंकि इसमें लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया जा रहा है. ठीक है, अब इंडिया जो है उसको ऑलरेडी जो है वो पहले ही जब ये बननी शुरू हुई थी तो 100 करोड़ रुपए तो हमारी गवर्नमेंट ने उसी टाइम ग्रांट दे दी थी इनको, बायोलॉजिकल ई को. ठीक है, और अब जो है 1500 करोड़ रुपए हमने एडवांस में अपने ऑर्डर हमने 15 करोड़ सिटीजन्स के लिए पहले से ही बुक कर लिए हैं. ये 300 मिलियन वैक्सीन के ऑर्डर, 30 करोड़ बेसिकली. और कॉर्बेवैक्स जो है वो हमारी जो एक तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनने वाला है. ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. कॉर्बेवैक्स. So India has placed an order of 30 crore doses of Corbevax vaccine, which is basically made by a company, Hyderabad based company, Biological E. It is a very interesting vaccine because it only uses the spike protein of the virus, and it does not use the entire virus. Okay, so the harmful virus is not present in this vaccine. They are just using this spike protein of the virus, and it is using this spike protein to create antibodies in a human body, using and creating immunity against the virus. Okay, so they have been using this spike protein technique to make vaccines for hepatitis B already, but Corbevax will be among the first COVID-19 vaccines to use this recombinant protein subunit technology to make a vaccine. So we have already heard about Novavax. Novavax is being produced by Serum Institute in India also. It is basically a US based vaccine otherwise, but Serum Institute has entered into a voluntary licensing pact with it, and they are producing it in India also. Okay, so how Corbevax was made? It is basically being produced indigenously, but the research has been done by Baylor College of Medicine, which is based in US. Okay, so they started working on this recombinant protein vaccines for coronavirus, SARS and MERS since the last 1 decade, and
they have basically sequenced this virus in February 2020, and they cloned and engineered it using the same technique in which the alcoholic beer is made. Okay, so in August, this Baylor College of Medicine, they transferred this technology to Biological E, this India-based company, and Biological E is going to make this vaccine for the entire world. So why is this Corbevax A important, and why is it different? It is basically similar to this mRNA technique, and it only targets the spike protein. Okay, so Corbevax is also a two-dose vaccine. Okay, and it will be the cheapest available vaccine in India because it is made using a very low cost platform. Why does it matter? Because India has already given them, this Biological E company, an advance of 100 crore by this Department of Technology, and they have already placed this 1500. They have already placed an order of 330 crore vaccine doses by paying them 1500 crore advance, so that India can vaccinate almost 15 crore of our Indian citizens. Okay, so now let us see the next topic, which is biomedical waste. So a report, this report, ये एक बेसिकली एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021. ये कह रही है कि पिछले जो मई मंथ था, मई 2021, उसमें हर रोज 2 लाख किलो का बायो मेडिकल वेस्ट जो है वो इंडिया ने जनरेट किया है, इंडिया के हॉस्पिटल्स ने जनरेट किया है. तो ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट है. अगर हम उसको अप्रैल से कंपेयर करें तो अप्रैल में ऑलमोस्ट 1.4 लाख जो है वो किलो का जो वेस्ट जो है वो कोविड के टाइम पर जनरेट किया गया था अप्रैल 2021 में, और मार्च में 75,000 kg जो है वो डेली की फिगर थी. ठीक है, तो अगर हम मई से उसको कंपेयर करें तो बहुत हाई है, ऑलमोस्ट मतलब लगा लो 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है, 2.5 टाइम्स के ऑलमोस्ट आसपास है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है. तो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट. तो मतलब एनाटॉमी क्या होता है, आपकी बॉडी से रिलेटेड जो वेस्ट होता है वो है, और जो जैसे नीडल्स, सिरिंजेस या अदर मटेरियल जो यूज किया जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटी में, उसका जो वेस्ट है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं. ठीक है, अब बायोमेडिकल वेस्ट जब हम देख रहे हैं तो हमको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी देखने पड़ेंगे. तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में बनाए गए थे, और उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स होती रही. ठीक है, 2018 में भी कुछ अमेंडमेंट हुई, कुछ न्यू जो है वो रूल्स आते रहते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली रूल्स जो हैं, देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स देखते हैं. ये रूल्स उन सब पे अप्लाई होंगे जो लोग जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट. ये वो जो हैंडल कर रहे हैं बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट को, उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. अब इसमें कहा गया है रूल्स में कि जो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक ब्लैक बैग्स, ग्लव्स और ब्लड बैग्स हैं, उनको हमको फेज आउट करना है, क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. ये एक तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह होते हैं और ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो हम इसको जो है वो बिल्कुल हमको फेज आउट करना है. ठीक है, तो इस रूल्स में इसको कहा गया है कि इसको फेज आउट करना है. और जो है लेबोरेटरी में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, ब्लड सैंपल्स और ब्लड बैग्स में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसकी पहले से ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि उसको जो है ऐसे ही डिस्कार्ड ना कर दिया जाए. इसलिए कहा जा रहा है कि लेबोरेटरी में अगर आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो उसको उसी टाइम पे आपको ट्रीटमेंट कर देनी है उस वेस्ट की. ठीक है, फिर ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है हेल्थ केयर वर्कर्स को कि वो कैसे इस जो है बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे वो ट्रीट करेंगे, कैसे उसको डील करेंगे. ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो लोग बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं वो बार कोडिंग, जीपीएस का यूज करें, मॉडर्न टेक्निक का यूज करें, ताकि जो है बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर नजर रखी जा सके. फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आपको लैंड प्रोवाइड करना है, जिसके बेसिस पर जो है हम जो है ये कॉमन बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो फैसिलिटीज जो है वो बना सकेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. बायोमेडिकल वेस्ट. सो इंडियाज हॉस्पिटल्स हैव जनरेटेड ऑलमोस्ट 2 लाख kg ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट पर डे in the month of May 2021. So this report is laying out these statistics. If we compare this figure with April 2021, in April 2021 we have generated 1.39, almost 1.4 lakh kg of biomedical waste per day due to the this COVID basically this, but it is particularly the COVID-19 biomedical waste.
it is forget the other biomedical waste which is being generated in treating other illnesses such as cancer and all that. This is specifically to COVID-19 biomedical waste. So in March 2021, this daily figure was 75,000 kgs. This in May 2021, this 2 lakh kilograms is a significant number. And now what is, let us see what is biomedical waste. So human and animal anatomical waste is basically biomedical waste, and whatever we use in treating our this COVID-19 disease, it is such as needles, syringes and other material. This all this is the biomedical waste. Okay, so let us see the rules, biomedical waste management rules 2016. So these rules are basically were made in 2016, but there were some amendments such as in 2018, and there was even an amendment in 2020. Based upon that, I have collected the information here, and let us see what does these rules say. So these rules apply to all those people who basically handle biomedical waste, those who generate it and all that. And these rules are saying that we have to get rid of chlorinated plastic bags, gloves and blood bags. So these are almost as similar to single use plastics. That's why we want to phase it out in the next 2 years. So okay, so this from 2016 to 2018, it was decided that we shall phase it out, this fluorinated plastic bags. Okay, it is also saying that all those working in laboratory microbiological basically units, they have to treat these laboratory waste and all that, these microbiological waste and all this, they have to treat it at their own institution itself, so that they are not this waste is not discarded liberally. Okay, they want this, under these rules they want to provide training to the healthcare workers so that they can effectively manage these biomedical waste. The rules are also saying that the people who are dealing in this biomedical waste, they should use barcoding and GPS systems so that we can trace how the biomedical waste is being dealt and where does it stand at this moment. Okay, so state governments are also requested that they should provide land and facilities so that medical waste treatment can be done and medical waste can be disposed. Now let us see the next topic, which is INS संधायक. तो इंडियन नेवी जो है उसने अपने ओल्डेस्ट जो सर्वे वेसल है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल INS संधायक, उसको डीकमीशन कर दिया है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में. तो इसको जो कमीशन किया गया था 1981 में, ठीक है, इसके अलग अलग बहुत ज़्यादा हमने अभी तक यूज़ किया है इसको. ऑपरेशन पवन श्रीलंका में 1987 के टाइम पर, तभी भी इसका यूज़ किया गया था. रेनबो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो 2004 की सुनामी के बाद, उसमें भी इसका यूज़ किया गया था. फिर टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज में भी इसका यूज़ किया था. बहुत जगह पे इसका यूज़ किया गया है, ठीक है. तो ऑलमोस्ट आफ्टर 40 इयर्स ऑफ सर्विस जो है इंडियन नेवी की, उसके बाद जो है वो इसको जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया है. तो डीकमीशन क्या होता है, इसको मतलब एक तरह से अब हमने यूज़ करना बंद कर दिया, इसको अब शायद तोड़ेंगे इसको एक तरह से, या इसको हो सकता है कि वो जैसे कहते हैं कि म्यूजियम बना दें. तो मतलब बेसिकली अब ये अब सर्विस में नहीं है, ठीक है. इसको ओल्डेस्ट ये हाइड्रोग्राफिक वेसल था, अब ये इंडियन नेवी की सर्विस में नहीं है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. INS संधायक. सो द ओल्डेस्ट hydrographic survey vessel of Indian Navy, it has been decommissioned recently at Visakhapatnam at a naval dockyard. It was commissioned in 1981. It has served the Indian Navy in several operations such as Operation Pavan, Rainbow for humanitarian assistance and all that, and it has been decommissioned now. It has been in service for 40 years. After serving the country for 40 years, this hydrological vessel, this hydrographic vessel has been decommissioned now. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.